1 year Bible reading plan. Matthew 15 chapter 1 verse say 28 verse. Exodus 1 chapter 2 chapter. वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मैथ्यू 15 चैप्टर 1 वर्स से 28 वर्स। एक्सोडस 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 वचन से 28 वचन और निर्गमन की पुस्तक 1 अध्याय 2 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तू हमारा उजियाला है और अंधेरा उजियाले के अंदर कुछ भी काम नहीं कर सकता है। मेरे पिता परमेश्वर, अंधेरे को झुक जाना पड़ता है, उसके काम खत्म हो जाते हैं और पिता परमेश्वर उसका आनंद परमेश्वर टूट जाता है जब पिता उजियाला ऊंचा रहता है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारा जीवन बदलने का सामर्थ्य है तुझ में। अब फादर गॉड, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यावे परमेश्वर। इस समय खुदा परमेश्वर जब हम तेरे वचन को पढ़ेंगे, तेरा वचन हमारे समझ में उतर कर आने दे, तेरे वचन हमारे दोस्त बनने दे, तेरा वचन पिता परमेश्वर हमारे साथ संगति में बात करता हुआ हम प्राप्त करने दे, तेरा वचन हमारी अगुवाई करने दे, तेरे वचन के कारण खुदा परमेश्वर हमारे रास्ते बनने दे, हमारा समय बनने दे, हमारा भविष्य बनने दे। तेरे वचन के कारण खुदा परमेश्वर हमें पिता हर एक बात को सुलझता हुआ प्राप्त होने दे। सब कुछ तेरे वचन ही से होना है। वचन की गहरी बातों में खुदा हमको इतना ज्यादा लेकर चल कि हम पिता उसमें से कभी भी बाहर निकलने ना पाए। हम उस गहरी बात में खुदा अपने जीवन को पूर्ण रूप से समाये रखने दे। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे मैथ्यू 15 चैप्टर 1 वर्स से 28 वर्स। God's commandments and men's traditions, what defileth a man, etc. Then came to Jesus scribes and Pharisees, which were of Jerusalem, saying, Why do thy disciples transgress the tradition of the elders? For they wash not their hands when they eat bread. And he answered and said unto them, Why do ye also transgress the commandment of God by your tradition? For God commanded, saying, Honor thy father and mother, and he that curseth father or mother, let him die the death. But ye say, Whosoever shall say to his father or his mother, It is a gift by whatsoever thou mightest be profited by me, and honor to his father or his mother, he shall be free. Thus have ye made the commandment of God of none effect by your tradition. Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoureth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. And he called the multitude and said unto them, Hear and understand. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Then came his disciples and said unto him, Knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? But he answered and said, Every plant which my heavenly Father hath not planted shall be rooted up. Let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Then answered Peter and said unto him, Declare unto us this parable. And Jesus said, Are ye also yet without understanding? Do not ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly, and is cast out into the draught? But those things which proceed out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications,
thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man. But to eat with unwashen hands defileth not a man. Then Jesus went thence and departed into the coasts of Tyre and Sidon. And behold, a woman of Canaan came out of the same coasts and cried unto him, saying, Have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered her not a word. And his disciples came and besought him, saying, Send her away, for she crieth after us. But he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But she answered and said, It is not meet to take the children's bread and to cast it to dogs. And she said, Truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith. Be it unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. मत्ती 15 अध्याय 1 वचन से 28 वचन तक पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। परंपरा पालन का प्रश्न 15 अध्याय पहले वचन से। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर न करे। इस प्रकार तुमने अपने परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, अशुद्ध करने वाली बातें। 10 वचन से आगे। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास 21 वचन से आगे। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया।
पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। अनेक रोगियों को चंगा करना। अच्छा, बस यहाँ तक ही हमने पढ़ना है। उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई, 28 वचन तक। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में पूरा हो चुका है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे अंदर का विश्वास तूने रखवाली करके हमें चाहिए वो बातें देने का तूने वायदा रखा है, इसके लिए धन्यवाद। हमें फिट एंड फिक्स करे इन वचनों में, हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।